से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है यहाँ पे, और मैं बहुत खुश हूँ। ये अवार्ड जीतना शायद फोर्थ या फिफ्थ होगी इस फिल्म के लिए। 17 से ज़्यादा फेस्टिवल्स अटेंड कर चुकी है फिल्म, तो मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई में पहला अवार्ड है ये, मुंबई शहर में। हाँ, विक्रांत मोरे जी ने जो ये फेस्टिवल के बारे में जब मुझे पता चला कि यहाँ पे फिल्मों की स्क्रीनिंग से ज़्यादा क्रिएटर्स को प्रमोट करने के लिए अलग तरह से एक मंच तैयार किया गया है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है वो, जो अभी तक मुझे लगता है और कहीं ऐसा है नहीं, क्योंकि लोग नॉर्मली फिल्में स्क्रीन करने पे फोकस करते हैं सारे फेस्टिवल्स, लेकिन होता क्या है कि जो मेकर्स हैं, जो लोग एक मंच चाह रहे होते हैं, स्टेज चाह रहे होते हैं कि उन्हें प्रोजेक्शन मिले वहाँ से, वो मिल नहीं पाता है फेस्टिवल्स में और उन पे फोकस नहीं किया जाता है। तो इन्होंने जो है एक मंच दिया है जो कि हम अपनी बात रख सकते हैं, हम एक थॉट रख सकते हैं एक फिल्म मेकर के तौर पे कि हम किस तरह की फिल्में बना रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक लगा और शायद मैंने इसलिए ये फेस्टिवल अटेंड भी किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Platform for aspiring filmmakers, aspiring and independent filmmakers like us, and giving this, getting this opportunity in the starting of our careers. This means a lot, and that way, I would like to express my heartiest gratitude towards this institution, IPIF. Yes, we've received it for the Showman, which is our documentary. It's a documentary, yes, The Showman, and it got the award of the best documentary film Bengali. It is directed by Madhavi Varman and me and Mudra. So it is we are actually a mother-daughter duo. Yeah. So yeah, and we did. Yeah, that's true. So yeah, we have directed this jointly, and we started. Actually, this is our first documentary. This is a debut documentary, and it was started with the dream of. This is on Oshit Boshu. Oshit Boshu is a Bengali theatre worker, and he's a groom. He has taught people like Aparna Sen and Shohak Sen, and he's behind many so more. He's always behind the stage and behind the screen. So the germ of making this documentary was to bring him forward. There are people that people should know about, and we don't know. They have immense contributions in the field of art, but we do not always be able to give them that much recognition as much as they deserve. So that is the main, I would say, the idea of all the documentaries that we work on. This being the first one, and we are currently working on one with Miss Shohak Shen, and we are also working on a short feature film which is named as Kal. It's kind of an experimental movie. So we wish you all to give us your blessings and your love so that we can continue our journey. And huge thank you once again to IPIF, Indian Panorama International Film Festival. और एक बात बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री हम लोग जब बनाया था वो स्टूडेंट लोगों के लिए, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स एक्टर्स, उन लोगों को तो पता होना चाहिए एक्टिंग क्या है, कैसे डायरेक्टर बनना है। ये सब इन लोगों में से लाइक ऑसित सेन इज द बेस्ट, ऑसित बोसु इज द बेस्ट मतलब टीचर या ऐसा टीचर बहुत कम होता है जो लोग सिखाते हैं अगली जनरेशन के लिए। हम लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना, इट इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिल्म मेकर्स लाइक अस, क्योंकि ऐसा करेगा तो ड्रामा में भी, थिएटर में भी बहुत कुछ है, जैसे कि थिएटर से हम लोग सीखते हैं, तो ये मेंटर्स लोग जो है इनको लेके कुछ बनाना चाहिए। It was our social responsibility. Yeah, I'd like to share something here. Our documentary starts with this word that he has a lot to give to the future generations. This is the first scene of our documentary, so that is also something. Thank you. Okay, ma'am. Thank you Thank so you. much. Thank Bye you. bye. विक्रांत मोरे जी बहुत ही बहुत ही तराश के ये सारे फेस्टिवल से फिल्म देख देख के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिल्म हमारे तक लेके आए हैं। तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक हिम। कितने
कितने दिनों से, पता नहीं कितने महीनों से ये टीम लगी हुई है कि बहुत अच्छे से अच्छे मूवीज देख के अच्छे से अच्छे मूवी फेस्टिवल तक लेके आए और उन लोगों को सम्मानित करे। और डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है नए फिल्म मेकर्स का, तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक हिम। मैम सर आप कुछ बोलते हैं? नहीं, मैम बोलिए। आप कुछ बोले मैम? थैंक यू। मेरा नाम आनंद देवविष्णु है और मेरी मराठी फिल्म प्रारब्ध के लिए मुझे एज अ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और ये फिल्म एक कैंसर पीड़ित फैमिली पर है, जिसमें फिल्म का जो टैगलाइन है वो गरीबी ही कैंसर है और ऊपर से किसी गरीब को कैंसर हो जाए तो फिर क्या। तो इस सिचुएशन में एक फैमिली पर क्या क्या बीतती है, उनके साथ क्या क्या हदबलता होती है, ये सब दिखाने की कोशिश इस फिल्म के द्वारा की गई है। और इस फिल्म को से अगर कोई 2 या 3 लोग भी प्रेरित हो जाए और ऐसे लोगों को अगर हेल्प हो जाए तो इस फिल्म बनाने के पीछे का जो इंटेंशन है वो साध्य हो जाएगा। थैंक यू सो मच इंडियन पैनोरमा फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू सर। रेडी? सर इस अवार्ड के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नितेश जी आपका स्वागत है। आप कितनी बड़ी आपने सुधर, my name is Sudhar. सर इस अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इस अवार्ड को सम्मानित किया गया? Hi, this is Sudhar. I'm a filmmaker from Chennai, Tamil Nadu, and we have got Best Unique Concept Award for our short film policy. So in today's world, the much needed trait for every human is being a human. So we thought we could do something which stresses humanity. So our short film is based on humanity, and feeling very happy to receive this Indian Panorama International Film Festival award. It's a very prestigious film festival. So thanks to the festival team and the jury members for presenting us with this award. And story is from Mr. Tamil Selvan, and we have also co-produced it. And we would like to say something about this in Tamil. Yes, sir. ஃபஸ்ட்டு பாலிசின்னு முதல்ல ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ண உடனே ஒரு மனித நாயத்தை பற்றி எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்ணி டைரக்டர்கிட்ட சொன்னேன். அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கும் இந்த டீமுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். Thank you. Thank you. தேங்க்யூ. अवार्ड और क्या बोलना चाहते हैं विक्रांत के बारे में? सबसे पहले नमस्कार, आप लोगों का भी वेलकम। मेरा नाम जयदीप चक्रवर्ती, मेरा साथ माय डायरेक्टर पायल चौधरी है। मैं इस फिल्म में प्रोड्यूसर, एक्टर, लिरिसिस्ट एंड स्टोरी राइटर हूँ। तो ये फिनिक्स हमारा मूवी जो है ना, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया, दो चीज़ के ऊपर हमने कोशिश किया एक मैसेज देने के लिए सोसाइटी में। डिप्रेशन में आप लोगों को मालूम है कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, तो लोग उसका जो एम्बिशंस होता है वो एम्बिशन जब फुलफिल नहीं होता, लोग डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड कर लेते, टेंडेंसीज होता है। ये स्टोरी का वैसे ही हमको एक दिखाने का था कि डिप्रेशन में हारना नहीं, नेवर गिव अप। क्योंकि हारते हारते टैगलाइन है कि जब आप गिर जाते हो फिर आप छोड़ देते हो कोशिश करना, वो फेलियर है। 10 बार भी गिरते हो फिर 11वीं बार में उठ के आप विनर हो सकते हो। तो ये डिप्रेशन का ये था। डिमेंशिया एक ऐसा डिजीज़ है कि जिसके लोग धीरे धीरे उसको याद खो जाता है, फिर वो उसको मेमोरी कम हो जाता है, ब्रेन का इससे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है। फिर उसको जो लव्ड वंस है उनका साथ जो है उनको पहचान नहीं पाते। तो उसको हाउ दे शुड बी लव्ड, हाउ दे कैन बी क्योर्ड, हाउ दे कैन बी नर्चर्ड विद लव, तो ये सब लिखी है। 2 फिल्म हमने बनाया मेंटल इलनेस के ऊपर। एंड हम दोबारा शुक्रिया देना चाहते हैं इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल को, क्योंकि ये खाली रिकॉग्निशन नहीं है कि एनकरेजमेंट है हमको, हमारे जैसे फिल्म मेकर प्रोड्यूसर को, कि इस तरह का और मूवी बना है। सो विक्रम जी को स्पेशल थैंक्स टू विक्रम जी कि उन्होंने ये किया। पायल, इफ यू वांट टू से समथिंग। हाँ, ये एक्चुअली ये जो मूवी हम लोगों ने बनाया है एक शॉर्ट फीचर है और ये इंग्लिश फिल्म है जो हम लोगों ने बनाया था फिनिक्स बोल के। और फिनिक्स क्योंकि ये स्टोरी का नाम हम लोगों ने इसके लिए दिया है, ये फिनिक्स एक माइथोलॉजिकल ग्रीक माइथोलॉजी में इसका जिक्र किया गया है, जो मर जाता है फिर उसके ऐश से फिर से वो रिबॉर्न होता है। ये जो स्टोरी है डिमेंशिया डिप्रेशन के साथ साथ एक लड़की की जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उसकी एक सर्वाइवल फाइट है, उसकी एक विनिंग एक स्टोरी है कि डिप्रेशन के बाद भी समहाउ वो कैसे वो
सर्वाइव करती है और विन करती है अपनी लाइफ को। तो ये एक इट्स नॉट अ लाइक कोई ग्लूमी मूवीज नहीं है, इट्स अ विनिंग स्टोरी है जो लोगों को शायद इंस्पायर भी करेगा देखने के बाद कि नहीं, डिप्रेशन में कभी हारना नहीं चाहिए, गिर के भी खड़े होना चाहिए। पहली बात तो आई एम रियली थैंकफुल कि मिस्टर विक्रांत मोरे जी के थ्रू जो ये प्रेस्टिजियस फेस्टिवल हुआ है, इंडियन पैरानॉर्मा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और हमारी फिल्म को उसके अंदर इतनी रिस्पेक्ट और वो वैल्यू दी गई। बेसिकली हमारी एक फिल्म है जो एक डॉक्यू ड्रामा है जिसका नाम है रिदम ऑफ हेरिटेज। ये पंडित राम मोहन महाराज जी के ऊपर कहानी है, जो कथक के आखिरी लिविंग लेजेंड है और बिरजू महाराज जी के छोटे भाई हैं और पंडित शंभू महाराज जी के पुत्र हैं। तो मैं बिरजू महाराज जी का नेफ्यू हूँ और ये मेरी सिस्टर है ऋषिका, जो हमारी इस फिल्म में मेन प्रोटैगनिस्ट है, एंड शी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ लेजेंडरी सितारा देवी जी। मैम आपकी दो बात होगी। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग अ बाइट एंड इनकरेजिंग अस। आप सबका साथ हमारे साथ बना रहे, दैट इज priceless for us. So thank you so much for your time. Or it's an honor to do something for our family always. सबके लिए होता है, पर ये फिल्म हमारे परिवार से, हम इस परिवार से जुड़ते हैं और इस परिवार से आते हैं जो जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति, कल्चर, कला के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। पर उसके साथ साथ एक तरह से भारतीय युवा होने की just for being a part of this, being an Indian, being a young person from this country. I'm very thankful also because विक्रांत सर he's taken a very good initiative, जिस वजह से उन्होंने बहुत सारे सोशल कॉजेज के ऊपर जो मूवीज बने थे उन्हें सेलेक्ट किया। एंड हमारी ये सब्जेक्ट इसलिए थी बिकॉज हम इसका एक प्रचार करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इंडियन कल्चर है, भले वो म्यूजिक हो, डांस हो या कोई भी गायन वाद्यन जो भी हो, वो विलुप्त होता जा रहा है। क्योंकि हमें वेस्टर्न कल्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारा जो जिसे बोलते हैं हमारा पिलर है, हमारे जितने भी इंडियन सिनेमा में भी आप देख लीजिए, जितने भी पुराने लेजेंडरी गाने थे, क्लासिक गाने थे, वो सब एक जिसे कहते हैं इंडियन म्यूजिक पे बने हैं, जो आज भी एवरलास्टिंग हैं, एवरग्रीन हैं। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है वेस्टर्न चीज़ों से, ना कि बॉलीवुड से, पर हमें ये आपत्ति है कि ये चीज़ें जो विलुप्त हो रही हैं, ये जो कलाकार हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, और आजकल यूट्यूब से लोग थोड़ा थोड़ा सीख के सोचते हैं कि उन्हें आ गई चीज़ें, दैट इज़ अ लिटिल रॉन्ग। और जब तक ये कलाकार, ये दिग्गज कलाकार हैं हमारे बीच, हमें उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए, हमें उन्हें उनसे जाके सीखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे घर की कला नहीं है। हम इस घर से ज़रूर आते हैं, इस खानदान से ज़रूर आते हैं, पर ये हमारी सिर्फ घर की कला नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर उस युवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कल्चर के लिए कुछ करे, कुछ नहीं तो कम से कम कथक और भरतनाट्यम और मणिपुरी के बीच का अंतर तो जाने। तो बेसिकली मैं एक चीज़ उसमें छोटी सी ऐड करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं पूरी क्रू को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने इस फिल्म में योगदान दिया है, प्रोड्यूसर प्रबल सेन जी का, एंड ऑफ कोर्स माय फादर पंडित राम मोहन महाराज जी। और मेन मोटो इस फिल्म का यही है, प्रिजर्वेंस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। आज वो आखिरी लिविंग लेजेंड है कथक के, और कल को वो दिन नहीं आना चाहिए कि हम यूट्यूब पे देखें बोले महाराज ने क्या परफॉर्म किया, लेकिन जब महाराज ही ना हो। तो आज वो है तो उनकी तवज्जो कर लीजिए, ये फिल्म का मेन उद्देश्य है। जी मैम, इंडियन पैरानॉर्मा इंटरनेशनल फेस्टिवल में आपको जो सम्मानित किया गया है, विक्रांत मोरे जी के बारे में क्या बोलूँगा? तो मेरा सामान है, म्यूज़िक वीडियो है, नाम है ज़िंदगी है, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी है। इसका मैसेज ये है, प्यार से प्यार ही पाना ज़िंदगी है। तो हर चीज़ से प्यार करो, हर इंसान से प्यार करो, हर जानवर से प्यार करो। मैसेज ये है, क्योंकि मैं एनुअल फीडर हूँ और काफ़ी कम्युनिटी सर्विस करती हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी आ रखी है यहाँ पे। तो हम लोग एनुअल फीडिंग करते हैं। जब मैं इंडिया मूव हुई थी यूएसए से, तो मैंने ये सॉन्ग बनवाया था कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई थी, जो मेरी लाइफ थी वो कैसे चेंज हुई थी। तो वो चेंज इससे हुई थी कि मैंने एनुअल फीडिंग करना शुरू की। मैं एक्ट्रेस थी न्यूयॉर्क में, और एनुअल फीडिंग शुरू की, और फिर सिंगिंग भी की, सिंगिंग साइड भी सीखती थी पहले से ही। तो मेरा ये वॉर इसलिए है क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, तो प्यार से जियो,
प्यार से प्यार पाना प्यार है जिंदगी है, प्यार से ही प्यार पाना जिंदगी है। थैंक यू। ये इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ऐसे फिल्म मेकर्स के काम के लिए बढ़ावा देने की कोशिश इसके द्वारा की जाती है, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी पीपल नाम की एक फिल्म है जो एनवायरमेंटल के समस्याओं पर आधारित है। उसका मैं डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर हूँ और ये मेरी पहली फिल्म है और मैं इस क्षेत्र से नहीं हूँ, मैं एजुकेशन क्षेत्र से हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है, इस पर फिल्म निकलनी चाहिए और पहली फिल्म के मेरे अभी तक इस फिल्म के लिए 131 नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं और बहुत लोगों ने सराहा है, क्रिटिक्स ने भी उसे अच्छी तरह से उसकी प्रशंसा की है। तो मैं सभी मेरे ऑडियंस, मेरी एंटायर टीम और मेरे स्टूडेंट्स सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आगे जाके ऐसे ही सब्जेक्ट्स पर एनवायरनमेंट से जुड़े काम का फिल्म मैं बनाऊँ। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एनवायरनमेंट या बायोडाइवर्सिटी या नेचर कंजर्वेशन, इस पर मैं खुद काम करता हूँ और ये फिल्म उसी का एक हिस्सा है और ये फिल्म का बहुत सारे जो पार्ट्स है या हम हिस्से है वो मेरे खुद के अनुभव पर आधारित है, मेरे जीवन पर आधारित है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि विक्रम सर का हम सभी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म सब न्यू फिल्म मेकर्स के लिए दिया है और इन्हीं की वजह से क्या होता है कि जो नए नए फिल्म मेकर्स है जिनको लोग पहचान नहीं पाते, जो लोग उनका मैसेज जो है वो संदेशा लोगों तक नहीं पहुंचता। और दूसरी बड़ी बात विक्रांत सर की या इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल की ये है कि इन्होंने सोशल इश्यूज पर जो फिल्म्स निकलते हैं उनको सेलेक्ट करके उनको बढ़ावा देने की कोशिश की है, ये बहुत ही अच्छा है। रीजनल फिल्म मेकर हूँ मैं और बेस्ट मोटिवेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मुझे मिला है। फिल्म का नाम है स्वर्ग अंदर सुधीर फड़के। सो थैंक यू पैनोरमा और आप सभी लोग आज यहाँ आए हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस न्यूज़ विद यू ऑल। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर दिस अवार्ड, थैंक यू। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪನೋರಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನುಡಿಮುತ್ತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತು ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನ ಉಳ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೂವಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂತೆಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಾಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಓದಿಸ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು? ಆ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲಿ, ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ये मुझे मेरी फिल्म ऑपरेशन मराठा के लिए मिली है। मेरी स्टोरी जो है वो एक कसाब के बाद दूसरा भी एक ऐसा आतंकवादी मुंबई में आया जो कसाब का जो काम अधूरा रह गया था, ऐसे वहाँ के मौलवी को लगता था, तो पूरा करने जो आया था उसके साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने जिस तरह से कुछ भी नहीं हो पाया उससे और उसको पकड़ के किस तरह से उसका इलाज कर दिया, उसके ऊपर ये है। और इलाज जिन्होंने किया वो मुंबई पुलिस ने किया, लेकिन आतंकवादी जो है वो सोच रहा था, उनके दिमाग में चल रहा था कि यूपी योगी का, बनारस मोदी का और गंगा सारे हिंदू की,
तो वार उधर करो। ऐसा करके इस बार उसका प्लान था यूपी में जाके बनारस में काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर के ऊपर ब्लास्ट करने का। उसको किस तरह से रोका गया और कैसे एक बड़ा हादसा होने से बच गया, उसके ऊपर ये फिल्म है। कसाब के टाइम पे जो जो पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया था, लेकिन उनका इतना कोई कसूर नहीं था, वही सस्पेंड जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने ही बोला कि मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन एक खुफिया ऑपरेशन करते और सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर्स ने ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ मिलके कैसे खुफिया ऑपरेशन करके उसको पकड़ा और एक बड़ा हादसा बचाया, उसके ऊपर फिल्म है। इसलिए नाम है ऑपरेशन मराठा। फिल्म की पृष्ठभूमि जो है बनारस यूपी की है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको सम्मानित किया गया, क्या बोलना चाहिए विक्रांत मोरे जी के बारे में? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंडियन पैनोरामा फिल्म फेस्टिवल का। मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है एंड मैं विक्रांत को हमेशा माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद हिम। बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये फिल्म फेस्टिवल बहुत लोगों को इंकरेज कर रहा है, बहुत सारे फिल्म मेकर्स को, बहुत यंग फिल्म मेकर्स को, और मुझे खुशी होती है। मैंने ये अवार्ड पहली दफ़ा जीता है इंडियन पैनोरामा फिल्म फेस्टिवल में और बहुत खुशी हो रही है। इस अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता है ये अवार्ड? ये आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया फॉर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है और हमारी फिल्म हुनर है जिसमें रोहित रॉय है, मधुरिमा टोली है, वेदांत शर्मा है और फिल्म ने अभी ये हमारा 13वां अवार्ड है। 13 अवार्ड ये पिक्चर ने जीत चुका है और बड़े बड़े फेस्टिवल में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है फिल्म को और मुझे बहुत खुशी होती है कि हुनर का सब्जेक्ट बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। हुनर बेसिकली पेरेंट्स को एजुकेट करता है ये फिल्म उसके बारे में और हमें पेरेंट्स को अपना पैशन बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए, उनके स्किल्स को जानना बहुत ज़रूरी है और फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मुझे बहुत खुशी है। और मेरी वाइफ सुप्रिया मुखर्जी प्रोड्यूसर है। इट्स एन ऑनर रिसीविंग दीज टू अवार्ड। बहुत अच्छा लगता है जब आप मेहनत करते हो और इस तरह से आपको अवार्ड के थ्रू नवाजा जाता है। It's really good and I always believed in my director. He's my husband, but he's a very talented director. So हुनर is a very beautiful short film. मैं चाहूँगी कि जब ये रिलीज हो तो आप सब देखें और उसे सराहें। थैंक यू सो मच। घर में दो अवार्ड तो आ रहा है, अवार्ड आ रहा है, कितने टाइम में घर का पार्टी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, वी आर वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत जल्दी आप सभी लोगों को फिल्माले स्टूडियो बुलाऊंगा और पार्टी दूंगा। बहुत ज़रूरी है पार्टी देना और मुझे खुशी होती है मीडिया ने हमेशा हमारी मुखर्जी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है। आप लोग जैसे जानते हो बहुत योगदान मुखर्जी फैमिली ने दिया है। मेरे ग्रैंडफादर पद्मश्री शशिधर मुखर्जी से मेरे पिताजी श्री जॉय मुखर्जी और मेरी बहनें काजल, रानी मुखर्जी, अयन मुखर्जी और मुझे खुशी होती है सुजॉय मुखर्जी मेरा नाम है और मैं लेगेसी को आगे ले जा रहा हूँ और मैं ये दोनों अवार्ड डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पिताजी श्री जॉय मुखर्जी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं बहुत जल्दी आप लोग प्लीज आइए। स्पेशल प्रीव्यू रखूंगा हुनर का, तो इनके साथ आप मेरा नंबर ले लीजिए, सबको इनवाइट करूंगा। फिल्माले में पार्टी करना बहुत जरूरी है। मैडम आप भी आ जाइए। अरे शंकर कह लो यार, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं शंकर बाबा मेरी जान तू ले लो मेरा, मैं हूँ ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ ब्रो। मैडम सर सबने देखा होगा, सिर्फ मैडम सर। थैंक यू। माई सेल्फ यश गद्रे एंड ये मेरा तीसरा अवार्ड है इस फिल्म के लिए इस साल में 2024 में 2 मिले, इस साल 1 मिला और मैं इस फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे को फेलिसिटेट करने के लिए इस अवार्ड के लिए एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द फिल्म मेकर्स इन द फ्यूचर। मेरी फिल्म क्लाइमैक्स है, तो बेसिकली इसमें मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मैंने शेयर करने का कोशिश किया है इस फिल्म में। एक फादर और सन उनका रिलेशनशिप है और इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव स्पेस में डैड को दिखाया है एंड
थोड़ा सा नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव क्वालिटीज़ जो है डैड की, वो पिक्चर में दिखाई है मैंने। विक्रांत मोरे जी ऐसे कलाकारों को ढूंढ के लाते हैं जो बहुत पर्दे के पीछे रहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के अवार्ड कराते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जो कुछ भी एफर्ट्स वो ले रहे हैं, ऐसे हमारे जैसे उभरते फिल्म मेकर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमको एक मौका मिले अपना क्रिएटिविटी दुनिया के सामने दिखाने के लिए। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके लिए। मैम यू कुछ आप कहना चाहेंगे? मतलब मूवी अबाउट योर कैरेक्टर, आप क्या कर रहे हो? नहीं तो वैसे मेरा बहुत बहुत बड़ा कैरेक्टर था नहीं। आई वॉज जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एक्चुअली। ही इज़ माई हस्बैंड। आई वॉज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। कितने खुशी मिल रही है आज? अलॉट मतलब उसकी मेहनत मैंने सेट पे देखी है। वो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत अलग हो जाता है। ही इज़ लाइक अ डायरेक्टर एंड एवरीथिंग। ही नोज द स्टोरी वेरी वेल एंड इट्स इन हिज माइंड, उसके मन में रहता है, वही पर्दे पे आना चाहिए। मैं तो वो ही वोंट स्टॉप। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू सो मच। और मैंने एक फिल्म बनाई है परीक्षा करके, शॉर्ट फिल्म है, तो मेरे को मिला है बेस्ट इनोवेटिव फिल्म मेकर का अवार्ड। एंड आई थैंक IPIFF सो मच फॉर दिस अवार्ड, क्योंकि मतलब बहुत मुश्किल होता है एक फिल्म बनाना, एंड उसके बाद यू गेट दिस अवार्ड, इट्स जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई टीम, मेरी पूरी टीम ने, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सब ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को बनाने के लिए। तो ये फिल्म बनाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को एक अवार्ड मिला, और ये अवार्ड आप सबके लिए दोस्तों, जिसने भी मेरा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कन्नड़ पूरे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के रीजनल आपको ढूंढ क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा मैं ये सारे मीडिया के लोगों को, जो काफ़ी साल से देख रहा हूँ कि आप लोग हर किसी के मीडिया का जो इवेंट कवर करते हो, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा मीडिया कर्मी को, ये कब तक खुद का मीडिया हाउस कब खुलेंगे। तो ये जो सरकार इसके ऊपर जो अंकुश रखी है कि मीडिया कवर तो कर लेता है, लेकिन क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, ये सारा कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो मेरी तहे दिल से ये ब्लेसिंग है कि आप लोगों का भी बहुत बड़ा मीडिया चैनल हो। कितने दिन लगा इस बड़े प्रोग्राम की तैयारी करने में? कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ? अभी तो ये हम लोग ने जब फेस्टिवल की शुरुआत की थी तो सिर्फ मेरे पास में 9 फिल्में थी, लेकिन आज मेरे पास में 38 कंट्री से फिल्में आई, 1400 फिल्में आई थी, और उस 1400 में से पूरे वर्ल्ड से हम लोग ने 100 फिल्में चुनी थी, जो सारी की सारी फिल्में सामाजिक मुद्दे पे थी, और जिसका फेलिसिटेशन किया गया। ऑल इंडिया से सिलेक्शन करते हो आप? ऑल इंडिया से सिलेक्शन करते हो आप? रीजनल सिलेक्शन किया आपने आज के उसके बारे में बताइए, ये कैसे आपने सर्कल को? देखिए क्या है कि हमारा भारत देश एक बहुत बड़ा भारत देश है, जिसके अंदर 150 करोड़ की आबादी है, और जिसमें से 85 to 90% लोग जो है उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो दोनों लाइट चंद्रमुखी जी और लाइट बढ़ा दी है। रीजनल को किस तरह से आपने कनेक्ट किया? पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग लैंग्वेजेस को आपने एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया, इसके बारे में बताइए कैसे कनेक्टिविटी आपने की? कनेक्टिविटी यही थी कि चाहे किसी भी रीजन का हो, किसी भी मजहब का इंसान हो, लेकिन हर किसी की समस्या एक ही है, दाल रोटी, यानी रोटी कपड़ा और मकान। और ये बेसिक नीड्स हमारे आज इंडिया के अंदर बहुत ही मुश्किल हो गई है। हर कोई इंसान अपने अपने प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इसके लिए जो लोग सरकार से लड़ रहे हैं तो उनको वो सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है। तो ये सिनेमा के लोग हैं जिन्होंने सामाजिक मुद्दे पे फिल्में बनाई थी और अपना अपना मुद्दा रखा था, और मैंने उनको उजागर करने की कोशिश की है। आने वाला वक्त में कैसे आने वाला है आपका? जब देखा गया अक्सर की फिल्म फेस्टिवल में देखा जाती है, फिर और जाता है, लेकिन आपके यहाँ तो अलग ही नजर है। हमने देखा कि लास्ट 9 साल से हम फेस्टिवल कर रहे हैं ना, तो जो सामाजिक मुद्दे पे फिल्में बनती है तो उसको देखने के लिए लोग आते नहीं है। जहाँ पे ग्लैमर इंडस्ट्री, बोल्ड कंटेंट या मारधाड़ देखने के लिए आते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि यार सब आजकल सब गलत हो रहा है, रेप हो रहा है, मारामारी हो रही है, पॉकेटमारी बढ़ रही है। अरे लेकिन भाई जब सामाजिक मुद्दे फिल्में बन रही थी तो आपने बढ़ावा नहीं दिया। इसलिए हम लोग ने फैसला किया कि हम फेस्टिवल पॉडकास्ट के रूप में करेंगे, और सारे फिल्म मेकर का इंटरव्यू करके अगर लोग हमको देखने नहीं आते तो हम लोगों तक पहुंचेंगे। क्या बात है। आने वाले वक्त में कहाँ देखने को मिलेगा, नया क्या क्या आपको तैयारी है?
आने वाले दौर में मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि यही हमारा हिंदुस्तान था, जिस हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम बहुत ही भाईचारे की तरह मिलके यहाँ पे रह रहे थे। और जैसे कि मैंने कहा भी अब स्टेज में कि इस्लाम का जन्म ही इस इंसानियत की हिफाजत करने के लिए हुआ है, लेकिन आज सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके एक वोट बैंक बनाई जा रही है, और ये वोट बैंक सिनेमा के ज़रिए हो, लिटरेचर के ज़रिए हो, पॉलिटिक्स के ज़रिए हो बनाई जा रही है। और हमारे देश के लिए जिन मुसलमानों ने कुर्बानी दी, जैसे कारगिल की युद्ध सबको याद है, लेकिन कारगिल के युद्ध में मरे हुए 17 कैप्टन जो मुस्लिम कैप्टन है वो किसी को याद नहीं है, वीर अब्दुल हमीद याद नहीं है, और ना ही अब्दुल कलाम याद है। लोग कितने जल्दी भूल गए इस इतिहास को, इस बात का बहुत मुझे दुख होता है। मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं, इतने बड़े सक्सेसफुल इवेंट क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि आप लोग बहुत वक्त से वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और इवेंट की बात करूँ तो इवेंट तो हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा, आपने खुद ही बोला। ये एक्चुअली हमारा 3 दिन का इवेंट था, जिसमें 2 दिन हम 1 to 1 हमारे पास बहुत सारे फिल्म मेकर्स आए थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट फ्रॉम इंडिया। तो हमने उनका 1 to 1 इंटरव्यू लिया, जहाँ पे वो अपनी फिल्मों के बारे में हमें बताया कि जिसको हम यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएंगे कि हर लोग फिल्म देखने आ नहीं सकते। और जो हमारा आज का अवार्ड था वो भी हमने पूरे 100 फिल्म मेकर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड को हमने फेलिसिटेट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि एनकरेजमेंट और फेलिसिटेशन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में किसी को भी, क्योंकि उससे वो और एनकरेज होंगे और भी ऐसे अच्छे मुद्दे हम तक लाएंगे और हम फिर आप तक लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। तो मैं सारे फिल्म मेकर्स को जो हमारे पास जिनको अवार्ड अवार्ड मिला उनको सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही ये हमारा सक्सेसफुल इवेंट हुआ। तो उनको भी थैंक यू और आप सबको भी थैंक यू। मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं कि आप भी देख रहे हो, काफी दिन लगे होंगे और क्या क्या आपने तैयारी किया, कैसा क्या? इस लड़की के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद ये बात करेगी। ये एक लड़की है जो एकदम सपना लेके यहाँ पे आई है, जिसको कोरियोग्राफर बनना है, एक एक्टर बनना है। लेकिन जिस तरीके का अभी माहौल बन चुका है कि एक लड़की जब अपने सपनों को सच करने के लिए आती है तो उस लड़की को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये लड़की के अंदर का जो डेडिकेशन है, जो मेहनत है, वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरे टीम का हिस्सा बनी है। वो 1 महीने से मुझे मदद कर रही है, हेल्प कर रही है। और बाकी जो भी आप बोलो। विक्रांत सर को मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरा पहला ही वक्त था इनके साथ में, और मतलब पहला मुझे मौका दिया इन्होंने काम करने का इनके साथ में। ऐसे एक्चुअल में इतने बड़े हैं, सभी को पता है कि इनका क्या चल रहा है एक्चुअल में, फेस्टिवल्स ऑल फेस्टिवल्स। तो बस थैंक यू सो मच। और बस इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और आगे भी इन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि हाँ तुझे और सपोर्ट भी करूँगा मैं। यहाँ पर क्या होता है ना कि कोई भी सपोर्ट नहीं करता एक्चुअल में। हम लोग बाहर से आते हैं एक्टर्स बनने के लिए, जो आता है कोई एक्टर बनने के लिए कोई आता है तो काफ़ी स्ट्रगल होता है, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। और सर काफ़ी अच्छा कर रहे, सोशल इशू पे भी अभी मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी देखे, अंदर अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए सर ने। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू आपको भी। मैं एक लास्ट ऐड करना चाहते हैं कि और क्या करने वाले हैं? विक्रांत सर के पहले मैं ऐड करना चाहती हूँ कि क्योंकि अभी आप सबके माध्यम से मैं भी सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सर की वजह से हूँ। क्योंकि सर थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, एंड आज आपने मुझे इतना सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर, 100 रुपये दो। नहीं मैं आपको 500 रुपये दूंगी। विक्रांत जी, आपका नाम मैं- विक्रांत है, तो इस सब लोग कैसे मिल रहे हैं? मतलब किस तरह के आप लोग अगर मिलना चाहें, सब सपोर्ट कर दीजिए, 30 लोगों के साथ मिलना चाहें। मैं एक बहुत ही पावरफुल दोस्तों एक मैसेज देना चाहूँगा सारे उन लोगों को जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जीवन खराब करने के लिए आए हैं। ये मेरा एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, चाहे वो हीरोइन बनने के लिए आए हो, चाहे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। इस माया नगरी मुंबई के अंदर अगर आप सपना सच करने के लिए आए हो तो एक बात याद रखो, इसको इनकम का सोर्स मत बनाओ, क्योंकि इनकम का सोर्स बनाओगे तो आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा स्ट्रगल है, 12-14 साल का। मैं मानता हूँ कि एक वक्त बाद आप सक्सेस होगे, लेकिन अगर आप फिल्म लाइन में अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आप खुल के बलबूते पे करो, ऑडिशन से ज़्यादा अपने आप पे वर्कआउट करो। और ये डिपेंडेबल मत रहो कि फिल्म लाइन आपका घर चलाएगी। आपको आपकी निजी ज़िंदगी चलाने के लिए एक ठेला लगाओ, पानी पूरी बेचो, वड़ा पाव बेचो, और उसके बाकी टाइम में आप बाकी आपका स्ट्रगल करो। आपने सपनों के ऊपर, आपके स्ट्रगल के ऊपर आपने निजी ज़िंदगी का बोझ मत डालो, वरना ज़िंदगी बीत जाएगी और लास्ट में ये होगा कि ज़िंदगी जीनी थी लेकिन चली गई। क्या बात, बहुत बेहतर, थैंक यू सर, थैंक यू। और लास्ट एक शायरी बोलना चाहूँगा, मंजिल पे पहुँच के भी मंजिल न पा सके, हम खराब थे या मुकद्दर खराब था, खुद के गलतियों को न समझ सके लोग, बस यही कहते रहे कि ज़माना खराब था। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच।
बलराम सराय से बलदेव सराय से बोलना है क्या? नहीं धर्म इक्वल करो, मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी मजहब ना रहे। एंटी के साथ में रहेगी सर आज अवार्ड मिला आपको, क्या बोलना चाहते हैं आप ये अवार्ड के बारे में, और जो विक्रांत जी इतने बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? Oh, I'm really happy to be here. बहुत खुश हूँ. Especially I thank विक्रांत मोरे जी और ऐसे सोशल इश्यूज का वैसे फिल्मों के लिए ये अवार्ड दे रहे. तो I believe it's really good for our country, India also. ये देश के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वो भी मैं सोच रहे थे क्योंकि बहुत कमर्शियल फिल्म्स है, मैं भी कमर्शियल फिल्म देखता हूँ. आई लव ऑल जॉनर ऑफ मूवी. सारी तरफ का मूवी पसंद है, पर फिर भी ये हमारा मूवी है सोशल इश्यू था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इट्स ए नेशनल स्लोगन. सो वही हमारा इश्यू था. बट बहुत सारे मूवीज में मैं ये सोशल इश्यू से जब सुना तो मैं ऐसे सोच रहे थे विक्रांत मोरे जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो देश को सुधारते भी है ये पूरा मूवी को अवार्ड देते हुए. तो बहुत बड़ा बात यही मुझे लग रहे थे. It is actually through the movie that we can get it into the Yes. hearts of The audience people, or the yeah. people. So through this, if we can get into the social issue and social issue को सुधार भी सकते हैं, तो इससे बड़ी बात तो और कोई नहीं है. दोनों बहुत बहुत बधाई आपको. Thank you. सम्मानित किया गया आपको विक्रांत मोरे जी ने, क्या बोलना चाहते हैं? सभी आयोजकों को ढेर सारा प्यार और शुक्रिया, धन्यवाद, आभार. बिग थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ ऑर्गेनाइजर्स फॉर दिस वंडरफुल इवेंट. और बेस्ट एक्टर मेरी जो फिल्म है ऑपरेशन मराठा, और ये ट्रॉफी मैं मुंबई पुलिस के उन सभी शहीदों को समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो फिल्म में भूमिका रही है वो भी एक कॉप की, बॉम्बे पुलिस के कॉप की, और वो किस हद तक जाता है अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होकर राष्ट्र को बचाने के लिए. सो दैट इज द कैरेक्टर ऑल अबाउट. एंड थैंक यू माय डायरेक्टर and producer Rahul Bhatt and Sanjay Lehru, and thank you my parents. आप सबने ढेर सारा प्यार दिया है अब तक बतौर चाइल्ड एक्टर हिंदी फिल्मों में, और अब सेकेंड इनिंग जब शुरू इससे अच्छी क्या हो सकती है. थैंक यू सो मच वंस अगेन. एंड वी हैव विथ अस बेस्ट अवार्ड विनर फॉर द कॉस्ट्यूम डिजाइन अदिति भट्ट. लेट्स हियर समथिंग फ्रॉम हर. थैंक यू सो मच सर. मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ऑर्गेनाइजर्स को कि जिन्होंने मेरा काम रिकॉग्नाइज किया और मुझे इस लायक समझा और ये अवार्ड दिया. और ये फिल्में रियल स्टोरी पे थी, तो काफ़ी चैलेंजिंग था कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग करना, पर हमने काफ़ी रियल अप्रोच रख के कॉस्ट्यूम मैंने डिज़ाइन किए हैं. बहुत सारे कैरेक्टर्स थे और कैरेक्टर्स के भी बहुत सारे चैलेंजिंग रोल थे, क्योंकि कभी रॉ ऑफिसर बनना था, कभी फील्ड पे जाके उन्हें मिशन अकम्प्लिश करना था, तो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं और उसी तरह से हमने किया है. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू द ऑर्गेनाइजर्स, एंड थैंक यू सो मच टू माय प्रोड्यूसर एंड माय डायरेक्टर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, and thank you so much to my parents for always supporting me and standing by me. Thank you so much. Thank you. क्या बताना चाहते हैं, आज आपका अवार्ड से सम्मानित किया गया है परोनमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से, और हमारा जो विक्रांत मोरे जी है इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪನೋರಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಸುಮಾ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೂವಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ. ಸೊ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು.
ಸೊ ನಾವೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆನ ತುಂಬ ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ನಂಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸುಮಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾ ಚಿತ್ರದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೊಗ್ಗು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಅರಳಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸುಮಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸಿಂದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೇಗೆ ಏನು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ತರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಡಿಯನ್ ಪನೋರಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ मच. बहुत अच्छा लग रहा है। PIFF ये सोशल मैसेज से जो भी रिलेटेड मूवीज़ हैं उन पे फिल्म जितने लोगों ने बनाया है उसे ये अवार्ड दिया जा रहा है और जो बेस्ट बना है उनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो मुझे बहुत तो खुशी हुई कि एक सोशल मैसेज पे मूवी बनाना, मोस्टली ऐसा सोचते नहीं कि कमर्शियल लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ आके बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं भी सोशल वर्क में मैं भी जुड़ा हूँ और मुझे अच्छा लगा। सर आपने 100 से ज़्यादा म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, आपने पिक्चर भी ट्रैक किया आपने और एक पिक्चर आपने भी अलग अलग डिफरेंट किस तरह आप सोचते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में आप? पहले फिल्म मेरी जो मचान थी मेरी डेब्यू फिल्म थी, वो सोशल अवेयरनेस पे मूवी था मचान। काफ़ी अच्छा मूवी था और शुमारों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मोस्टली देखा जाए तो मेरी सेकंड फिल्म उसके 22 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं। एक आशा, उसमें मैंने कुछ पार्ट भी डायरेक्ट किया है और गाने पूरे मैंने डायरेक्ट किए थे और म्यूज़िक डायरेक्टर भी था मैं उसका। तो एक उस फिल्म की बात कर रहा हूँ, रियल ट्रांसजेंडर्स को लेके मैंने फिल्म डायरेक्ट किया था, उनको लेके मैंने बनाया फिल्म। तो देखा जाए वो सोशल अवेयरनेस पे मूवी थी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ एक कमर्शियल मूवी में और सोशल वाली मूवी में दोनों डिफरेंस ये है कि हमें खुल के काम करने का मौका मिलता है जब सोशल की बात आती है, और कमर्शियल में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये कमर्शियली हिट जाएगा नहीं या क्या हो रहा है। तो आज मैं PIFF के बारे में ही बात करूँगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया गया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 लीजेंडरी सिंगर्स के साथ काम करके तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही अलग है। मेरी जितनी उम्र नहीं हुई है उससे ज़्यादा उदित जी और कुमार सानू जी के गाने हैं, उससे हज़ारों में। तो उन लोगों के साथ काम करके तो बहुत मज़ा ही आया है। और रिसेंटली अलका जी के साथ मैंने एक आशा में टाइटल ट्रैक उनका ही गाया हुआ था, और जावेद अली जी के साथ हिट मेरा सॉन्ग दिल फरेबी भी काफ़ी अच्छा चला। तो जैसा एक लेजेंडरी नाम है वो लेजेंडरी है भी बाय नेचर, एंड कहे तो सपोर्ट भी अच्छा करता है। रिसेंटली अभी आपका एक गाना आया था जिसमें मुस्कान जी और रोहन मेहरा, अच्छा मुस्कान बामने एंड रोहन मेहरा का रिसेंट एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है, काफी पॉपुलर है, बिग बॉस का भी निकला है। जी। तो क्या होना चाहता है? So basically, what do you want to talk about? So this film is done on a cell phone. Okay, you can make movies like this. 5 minutes. We've been to 18 film festivals. This is our 9th award and the first one where we could come to Mumbai. My Ai was born here in Mumbai. She's in the film, and she gets to see herself today. We won an award. The film is about the conversations we don't get to have. We're not just the terrorists in films abroad. We're not just the motel owners. We are special. Our stories matter. This is about bringing someone home, someone who doesn't look like us, but someone who matters. And in each of our families, having a loving, supportive family makes a difference. I'm fortunate to have that, and I wanted to see a family that looks like us, sounds like us, supports us. So this is my actual family. They play my family in there. My dad, brothers, Aji, grandmother who's 90, she's in the film. Someone who's visually impaired is in the film. It makes a difference what you choose to do with your art form. The skin that we're in is beautiful, brown skin is, and this film takes someone home in 5 minutes and shows you a different world. I wanted to say that
Chaya has tried out so many different auditions and other things, and I kept saying, don't wait for somebody else to give you a chance, do it yourself. And that is what she did. She wrote, directed, edited, pre-production, post-production, color corrections, and you name it. It takes a humongous effort to put a film together, and she did it. This is the first film. She also is first direction of this film, and I'm very, very proud of her. Thank you. मराठी इंग्लिश आणि मराठी फिल्म इंग्लिश मध्ये आहे. सम्मानित किया गया है विक्रांत मोरे के बारे में क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो मच IPIFF फॉर दिस वंडरफुल अवार्ड. मैं पूरी टीम की तरफ से उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ और यही बताना चाहता हूँ कि हमारी मूवी बाज है जिसमें एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इंसान कितना भी ऊपर पहुँच जाए बट उसको ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए, जैसा कि बाज करता है, बादलों के ऊपर उड़ के ज़मीन पे नज़र रखता है. तो बाकी आप लोग मूवी पे समझ सकते हैं. थैंक यू सो मच. सबसे पहले बधाई हो. इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फेस्टिवल को सम्मानित किया गया है. क्या बोलना चाहिए विक्रांत मोरे के बारे में? तो सर ने मेरे को भारत नेशनल अवार्ड भी दिया है इससे पहले, और आज मेरे को एक और अवार्ड मिला है इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. तो सर बेसिकली जो इंडी सिनेमा है, कमर्शियल तो नहीं, इंडी सिनेमा जैसे हम जैसे लोग हैं जो पहली बार मूवियाँ बना रहे हैं, दूसरी बार बना रहे हैं, उनके लिए विक्रांत सर ने बहुत हेल्प करी है और हमारा टैलेंट जो है वो इधर मतलब दुनिया में पहुंचाया. तो उसके लिए थैंक्स टू विक्रांत सर. दूसरी बात, मेरी फिल्म जो है जाग, इसका मतलब क्रो है उर्दू में, और ये मूवी ह्यूमन इंटीमेसी पे है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे है, और ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैसे होती है, उसकी डेप्थ क्या होती है, और संसार में, सोसाइटी में जो डार्क ह्यूमन साइकी है, जो डार्कनेस है ह्यूमन साइकी की, उसको एक्सप्लोर करती है थ्रू इंटीमेसी. तो ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो आप देख के शायद आपको गूज़बम्स आएंगे, पर ये आज होता है, और ऐसे मुद्दे, एक टैबू मुद्दे पे मैंने ये फिल्म बनाई है. तो ज़रूर देखिएगा और धन्यवाद इस अवार्ड के लिए. I must thank Indian Panorama इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये जो अवार्ड है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल है. ये मेरी फिल्म कॉफ़ी विद अलोन के लिए मुझे मिला है, और मेरी फिल्म कॉफ़ी विद अलोन जो मेरे यूट्यूब चैनल सुनील पाल कॉमेडियन पर है और भी बहुत सारे OTT पर आने वाला है. तो इस चीज़ के लिए मुझे मिला है. तो एज एन आर्टिस्ट, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर मैं बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ, खासकर विक्रांत मोरे का, क्योंकि मोरे हिंदी में है, इंग्लिश में मैं उसको मोर कहता हूँ. मोर एंड मोर आगे बढ़ रहा है. सर इसके अलावा अब क्या क्या आने वाला है आपका? बहुत सारी फिल्में आ रही है. एज एन एक्टर तो माया जाल आने वाली है, जो एक हॉरर फिल्म है. उसके बाद एक फिल्म आ रही है टीटू की पप्पी, पिंटू की पप्पी, वो फिल्म आ रही है. फिर बहुत सारी फिल्में और भी हैं ऑनलाइन है, जो सुपर जासूस, राजपाल यादव और मैं दोनों हैं. और बहुत सारी चीज़ें हैं. एक पानी भरा गिलास पानी, एक वेब सीरीज़ है, कृष्णा और मैं, और अनिता राज जी हैं. इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. सर उदित नारायण जी के वीडियो बहुत वायरल हो रहा है. जी. फ्रेंड्स के साथ, एक के साथ, 10 के साथ उसने लिप किस किया, तो सही बात है या गलत है? अच्छा किया उनके, अच्छा काम. भाई रोमांटिक हीरो जो है जब किस करते हैं तो आपको अच्छा लगता है. रोमांटिक गायक ने पहली बार कर दिया तो क्या बुरा. देखिए क्या है, ये तो ऐसी चीज़ है कि भैया मेरे बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या करूं, मैं किस करूं. उस लड़की ने उदित नारायण को मोहरा बनाया है. फिल्म मोहरा का गाना है. उस लड़की ने, देखिए सर जी, सर मैं एक प्लेबैक सिंगर हूँ सर, और प्लेबैक सिंगर का पहला काम है लिपसिंग करना. लिपसिंग करना, मैंने लिपसिंग सही किया या नहीं किया बताइए, आप ही बताइए. सर क्या बात. देखिए ममता कुल के बारे में मैं कहता था कि एक ज़माने में वो कहती, उसके बारे में कहा जाता था भोली भाली लड़की. आज साबित हुआ वाकई ये भोली भाली लड़की है. संत बन गई, साधु बन गई है, क्योंकि वो एकमात्र भारत की महिला है जिसने अपनी गलती स्वीकार की है. कहा है कि मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई. और आमिर खान का बेटा जुनैद का मतलब होता है सिपाही. उसको सिपाही बनना चाहिए था उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं, तो हीरो बन गया. जब आमिर खान के पास में गया जुनैद कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, तो आमिर ने उसको यही राय दी थी कि बेटा जो भी फिल्म मिले
खुशी के साथ कर लेना, और उसने खुशी के साथ हीरोइन मालूम ना, खुशी है उसकी फिल्म की हीरोइन, खुशी है, उसने पहली फिल्म भी खुशी के साथ कर ली। क्या बात है, बहुत थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मेरी फिल्म है, उसका नाम है भेष। एक्चुअली क्या है कि हमारे समाज में आजकल बहुत सारे जो धर्म परिवर्तन होते रहते हैं, तो मेरी जो कहानी है वो उसी के ऊपर है कि एक हिंदू लड़की को मुस्लिम अपनी मर्जी से वो बनती है, कोई फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी कहानी से ये बताना चाहता हूँ कि बचपन में एक बार जो चीज़ इंसान को सिखा दी जाती है वो ज़िंदगी भर के लिए उसके अंदर रह जाती है। लड़की ने बिल्कुल कोशिश किया इस्लाम धर्म को अपनाने का, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ वो डर के उसको, जो इस्लाम धर्म में एक आयतुल कुर्सी होता है, जैसे हमारे हनुमान चालीसा होता है, तो वो डर भगाने के लिए आयतुल कुर्सी होता है, वो पढ़ना होता है। लेकिन जब उसको डर लगा तो जो उसने आयतुल कुर्सी याद किया था उसके बदले उसके अंदर से हनुमान चालीसा निकलता है। तो सिंपल से मतलब ये है कि आदमी जब धर्म बदलता है तो वो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए करता है, अंदर से वो वही रहता है, चाहे वो हिंदू से मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम से हिंदू हो, चाहे और भी कोई धर्म हो। तो मेरा बाकी लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आप लोगों को धर्म परिवर्तन रोकना है तो जो हमारे समाज में धर्म के जो ठेकेदार हैं वो अपने धर्म को इतना मजबूत बनाएं कि लोग अपनी इच्छा से छोड़ के ही नहीं जाए। सिंपल सी बात है। और समाज में उसके लिए कुछ फालतू चीज़ें जैसे लव जिहाद नाम डालकर जो घृणा फैलाते हैं वो सब न करके आप अपने धर्म पे ध्यान दो ना, क्योंकि धर्म क्या है, धर्म एक जिंदगी जीने का तरीका है और हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का तरीका चुनने का पूरा है। सर इतना ही आपने नॉलेज लिया होगा, फिल्म भी बनाई होगी, एक लाइन आपने बोला था धर्म के ठेकेदार, ये धर्म के ठेकेदार क्या बताना? धर्म के ठेकेदार वो हैं जो जबरदस्ती के आपको धर्म के बारे में बताते हैं। जैसे आप अगर देखो किसी भी मंदिर पे चले जाओ, किसी भी मस्जिद में चले जाओ, जो वहाँ बैठकर आपको धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि आप वो उपदेश धर्म के बारे में कम बता रहे हैं। जैसे अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे एक हिंदू को ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए ये बताने की जगह आप बस मंदिर पे आओ, चढ़ावा चढ़ो। सिर्फ एक तरीके से बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारे जो हमको शिक्षा देते थे धर्म के लिए, जो एक वर्ग होता है ब्राह्मण वर्ग बोला जाता है, वो कहीं न कहीं एक गलत राह पे चला है। ब्राह्मण की बात सिर्फ ब्राह्मण नहीं, जैसे मैं खुद ब्राह्मण हूँ। क्या बोला चाह रहे हैं भाई? ब्राह्मण की बात ब्राह्मण ब्राह्मण मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं विकास तिवारी नाम है मेरा। थैंक यू भाई। ब्राह्मण की बात ही नहीं आती। ठेकेदार मतलब जो चलाते हैं, जो धर्म के चलाने वाला तो कौन है, कौन सा वर्ग, कुछ तो होगा उसको बोलते हैं। अभी देखिए ये मैं सीधा मंदिर की तरफ टारगेट कर रहा हूँ। जो मंदिर है आज मंदिर में जो होता है क्या बोलना चाहेंगे? जो मंदिर में है वो कौन है? ये पंडित बोलो या कुछ तो बोलो। पंडित ही है ना। हाँ, विक्रांत मोरे जी, ये देखिए ये मेरी पहली फिल्म है और मैंने सबसे पहले जैसे अयोध्या फिल्म फेस्टिवल में भी दिया है, जयपुर में भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है। तो ये पहली बार मैं फेस टू फेस आ रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी फेस नहीं किया है। विक्रांत मोरे जी ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे इंसान है और मैं उम्मीद करूँगा कि वो हमें और आगे अच्छे से और भी गाइड करें कि हम इस फिल्म के साथ क्या करें। क्या बात है, आपका अवार्ड किसने अवार्ड किया? बेस्ट फ्यूचर मूवी करके अवार्ड दिया है। हम लोग कर्नाटका है प्रॉपर। मेरा नाम संदेश शेट्टी है, ये मूवी का डायरेक्टर है। ये विकास शेट्टी है, प्रोड्यूसर है। नागेश लक्की नागेश है, ये प्रोडक्शन मैनेजर है। मैं ट्राइब का ऊपर एक मूवी बनाया है। एक महाराष्ट्र से ट्राइब लोग कर्नाटका में जो भी आया है, गोवा में पोर्चुगीज दाढ़ी हुआ था वो टाइम में, ये लोग इधर से कर्नाटका कोस्टल एरिया में आके उधर एक जंगल का तरफ वो लोग जो घर बनाया है, तब वो लोग क्या किया है, वो लोग जीने के लिए एक गुमटी करके एक ये जनपद जो भी है उसके इंस्ट्रूमेंट बनाया है। वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में वो लोग का फीलिंग, वो लोग का जो भी कल्चर है उसको ये गुमटी में दिखाया है। ये 7 अवार्ड है अपना गुमटी मूवी के लिए। हम लोग फ्यूचर मूवी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है।
पहली बार हम लोग एक आर्ट पैटर्न का मूवी बनाया है। तब हम लोग एक ये अवार्ड का बारे में पता नहीं, हम लोग थिएट्रिकल मूवी रिलीज करते, थिएट्रिकल मूवी बना रहे थे, तब ये पहली बार हम लोग इधर अवार्ड के लिए आए हैं। क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड इसमें ध्यान कभी भी रखा नहीं है, बट अभी इंडियन पैनोरमा में अवार्ड के लिए आया, बहुत खुश हो रहे, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल एक अच्छा कल्चर का बारे में, सांस्कृतिक का जो भी अपना इंडिया है, बहुत सारा कल्चर है इधर, जो भाषा भी है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, वेराइटी कल्चर है। ऐसे हम लोग एक ट्राइब लोग कर्नाटका और महाराष्ट्र का बीच का एक ट्राइब लोग का जो भी कल्चर है गुमटी करके, वो कल्चर के बारे में हम लोग इसमें दिखाई है। वो दिखाने के बाद ये बहुत रिसीव सब जगह पे रिसीव कर रहे, थिएटर में भी अच्छा अपना कलेक्शन भी हुआ है। तब मेरा प्रोड्यूसर विकास शेट्टी है, वो भी बात करेंगे। चलेगा। किसका सर? विक्रांत मोरे सर की सर। हाँ, ये बात तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि मोरे सर ने क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म न्यू कमर के लिए रखा है। ऐसे एक इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी है ना, इसका बारे में मेरे को पहले मतलब ये प्लेटफॉर्म नहीं, ये अवार्ड का बारे में मेरे को विश्वास नहीं था। मैं भी पत्रकार हूँ, जी में काम करता हूँ, जी में रिपोर्टर हूँ, फिर भी मेरे को विश्वास नहीं था, क्योंकि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म में ये लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत सारा फेस्टिवल आते हैं जाते हैं, ये सब लेके क्या करेगा, झूठ बोलते, पैसे लेते हैं, उधर आके बुलाते हैं, ये सब मेरे दिमाग में था। फिर मैं 2-3 बार मेरा मूवी सेलेक्ट हुआ करके बोलेगा, तो मैं बोला 2-3 बार मैं कॉल किया, सर ये पक्का है ना? मैं भी बोलता हूँ, मैं भी एक पत्रकार हूँ, झूठ मत बोलिए, ऐसे बोला। वो बोला एक बार आके देखिए, हम लोग को जबरदस्ती नहीं है बोला मोरे सर ने। उसका बात में दम था, उसका बात में जो भी वो कॉन्फिडेंस है, उसका वेबसाइट दिखाया मेरे को, वेबसाइट हम लोग सर्च किया है, वेबसाइट में बहुत साल से ये पैनोरमा अवार्ड चल रहे हैं, उसके बारे में मेरे को रेस्पेक्ट आ गया, अभी इधर आके और रेस्पेक्ट ज्यादा हो गया। क्या बात है, क्या बहुत थैंक यू। जी में कहाँ से चला लगा कहाँ गोवा? हाँ, कर्नाटक अवार्ड मिला आपको, क्या बोलना चाहते हो सर, किस लिए मिला आपको? मैं बंगला से आया हूँ। मेरा फिल्म एक शॉर्ट फिल्म है, इसका बंगला है शुदू बोने देखो, अंग्रेजी में प्लीज रिमेम्बर। एंड मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर शुद्ध सत्य चैटर्जी मेरा नाम है। दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन होप, जो अवार्ड मुझे दिया है फॉर रेजिलियंस एंड होप। बेसिकली आम आदमियों में डॉक्टर का एक अजीब सा स्थिति है, और आप लोग तो फिल्म सीरियल वगैरह देखते होंगे, वहाँ पे डॉक्टर को हम लोगों के एंगल से कभी दिखाया नहीं जाता है, या तो वो भगवान है या फिर शैतान है, बीच का कुछ है नहीं, वो जो इंसान है, ये चीज़ फिल्म में दिखाए बहुत कम है, और ज़्यादातर नहीं दिखाया जाता है कोई भी फिल्म में, नाइदर बंगाली नॉर हिंदी नॉर इंग्लिश, कहीं भी नहीं दिखाता है। तो आवर मेन पॉजिटिव एंगल जो था फिल्म का, कि ये एक इंसान भी है रे बाबा, और इनका भी बहुत चीज़ें होता है, इमोशन होता है, दुख होता है, सुख होता है। तो एक ही ऐसे मोमेंट में उसका एक लाइफ में बड़ा लॉस हो जाता है, और यही लॉस के ऊपर वो कैसे झेल रहा है, कैसे अपना जीवन बिता रहा है इस लॉस को लेके, और खुशी खुशी हंसी हंसी बिता रहा है, यही मेन फिल्म का थीम है। इज एन एजेड डॉक्टर हु इज डूइंग हिज जॉब साइलेंटली इवन आफ्टर सच ए बेरेवमेंट इन हिज लाइफ, दैट इज द मेन थिंग। उनका वाइफ का एक प्रॉब्लम लेके ये फिल्म आधारित है, और ये OTT में आने वाला है वेरी रिसेंटली, एक बंगाली OTT में, और उम्मीद है बहुत सारे लोग देखेंगे। और ये ऑलरेडी कैंस में नॉमिनेट हो चुका है, पहला जो 3 फिल्म है उसमें से एक आया है, अभी तक मैंने फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो कान फेस्टिवल में पता नहीं कि विनर होगा कि नहीं, पर विद इन 3 फिल्म शॉर्ट फिल्म नॉमिनेटेड हुआ है बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन फिल्म कैटेगरी में। तो यही कहना है। एक मर्डर मिस्ट्री फिक्शनल स्टोरी है फुल में जी। अपकमिंग मेरी फिल्म इल्ती 14 फेब को सिनेमाज में वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है, वो पंजाबी फिल्म है एंड सिनेमा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ
सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी विक्रांत मोरे सर को, इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई और आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया को, जिन्होंने मेरे फिल्म को सराहा और मुझे इस फिल्म को इतनी इज्जत दी कि आज मुझे ये अवार्ड मिला है। तो बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि कोई ये नहीं देता है। मैं बिहार की सबसे पहली लड़की हूँ जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में फीमेल डायरेक्टर बनी है, क्योंकि अभी तक जो भी बने थे बिहार से वो मेल डायरेक्टर थे, मैं पहली डायरेक्टर हूँ। और ये प्रोड्यूसर है इनके सलीम अख्तर, जो जिनके सिर्फ डायरेक्टर आशुतोष गारिकर, जेपी दत्ता, मधुर भंडारकर, राज कंवर, आर्यन सिप्पी, मतलब लॉट्स ऑफ लीजेंडरी डायरेक्टर थे। तो उनकी पहली बार जो लेडी डायरेक्टर है वो मैं हूँ। तो सलीम अख्तर का भी बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने मुझे लाया और मुझे मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे मौका दिया, क्योंकि फीमेल को जल्दी डेब्यू डायरेक्शन का चांस नहीं मिलता है। पर अनफॉर्चुनेटली आज सलीम अख्तर सर अभी अंडर मेडिकल इशू में है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन थैंक्स सलीम सर को कि जिन्होंने मेरे टैलेंट को समझ के मुझे डायरेक्शन का मौका दिया। और थैंक्स विक्रांत मोरे सर, जो मेरे इस फिल्म की कद्र किए, इज्जत दिए। पिक्चर का नाम है दाल रोटी, और मेन इसका यही है कि हर कोई यहाँ पे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी मजहब का हो, सबसे पहले दाल रोटी के लिए कमाता है। और मेन उद्देश्य ये है कि हर कोई अपना खेती बाड़ी जमीन छोड़ के शहर की तरफ भागता है, ये सोच पैसे कमाने के लिए। भले जिल्लत भरी जिंदगी क्यों न जीना पड़े, कोई ऑटो चलाएगा, टैक्सी चलाएगा, लेकिन अपने खेती जमीन पर खेती नहीं करेगा, जबकि खेती अपने आप में बहुत बड़ी रोजगार है। और ये सबसे बड़ा मैसेज है मोदी सर का, उनका प्रोग्राम है, उनका पॉलिसी है, उनके पॉलिसी पे ये पूरी पिक्चर है कि खेती अपने बारे में अपने आप में बहुत बड़ी रोजगार है। थैंक यू।